Hello friends, this is Prerna Raut, a student of MSc 3rd Sem, Autonomous PG College, Chinwada. Today we are starting a series in which we will be learning about various types of spectroscopy. But before that, we need to understand the basics of spectroscopy. Why is it useful and how it was introduced first time. Spectroscopy, as the name comprises of spectra and scopy, that is the branch of science in which we study about compound with the help of its spectrum. That is, spectroscopy is the branch of science that study the interaction of atoms and molecules with the electromagnetic radiation. स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत 1666 में हुई थी सर इसाक न्यूटन के थ्रू, जब उन्होंने प्रिज्म पे वाइट लाइट रिफ्लेक्ट कराया था और एक बैंड ऑफ कलर्स विबज्योर मिला था। ये जो बैंड मिला उन्होंने इसे स्पेक्ट्रम नाम दिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक रेंज है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बैंड को इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज करते हैं। Electromagnetic spectrum is the image of frequencies of electromagnetic radiation and their respective wavelength and photon energies with increasing wavelength and decreasing frequency. अब ये electromagnetic radiation क्या है? Electromagnetic radiation is a radiant energy that has both particle and wave nature and also has both electric and magnetic field. It includes radio waves, infrared, microwaves, visible rays, ultraviolet, X-rays and gamma rays. And this electromagnetic radiation interact with particles in two ways, absorption and emission. जब पार्टिकल ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है और उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाए तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इसे हम एब्जॉर्प्शन फिनोमेना कहते हैं। और जब पार्टिकल हायर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में होता है तब वो ग्राउंड स्टेट में आने पर एनर्जीज को एमिट करता है, इसे हम एमिशन फिनोमेना कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ फंडामेंटल टूल इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, allowing the composition, physical structure and electronic structure of matter to be investigated at atomic scale, molecular scale, micro scale and other astronomical distances. It provides information not only about the arrangement and motion of the outer electronics but also the inner electrons and about the angular momentum, magnetic moment, distribution of charge and magnetism of nucleus. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स का डिटेल में स्टडी करने में हेल्पफुल होती है। हम उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल और इवन माइक्रो स्केल पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इससे हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके अरेंजमेंट को भी स्टडी कर सकते हैं। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज की शुरुआत हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ शुरू कर रहे हैं। द फिनोमेना ऑफ NMR spectroscopy was first enunciated by American physicist Felix Bloch and Edward Purcell in 1946, for which they shared Nobel Prize in 1952. As the concept of NMR depends on the fact that most isotopes of elements possess gyromagnetic properties, meaning thereby that they behave like tiny spinning bar magnets. As nucleus has its charge, and we know that motion of a charged particle brings magnetism in particle. So the nucleus acts as a tiny magnet with north and south pole and keeps spinning in any orientation. जैसे कि हमारा एटम स्पिन करता है वैसे ही हमारा न्यूक्लियस भी स्पिन करता है और उसका भी एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है जिसे हम I से डिनोट करते हैं। और ये न्यूक्लियस किसी भी ओरिएंटेशन में स्पिन करता रहता है। That is, when a nuclei is placed in a DC magnetic field, it gets aligned in the direction of magnetic field, and with the varying circularly polarized radio frequency, the nuclei gets flipped, and we obtain a sharp peak in our graph
which gives us certain important information. So when a sample containing nuclei exhibiting this immutable gyromagnetism is placed in an appropriate DC magnetic field and is simultaneously irradiated by a weaker rotating radio frequency magnetic field, the nuclei can be compelled to reveal their presence, identify themselves, and describe the nature of surroundings, all by means of a minute radio signal which they transmit to a receiver coil coupled closely to the sample. डिटेल गायरोमैग्नेटिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि जो स्पिन कर रहा है इसी मोशन को हम गायरोमैग्नेटिज्म से रिलेट कर सकते हैं. Here we arises with some questions. Do all nuclei gets flipped or reacts as we supposed them to? And also, nucleus has protons and neutrons, and nucleus gets its magnetic properties due to spinning of this charge. So क्या न्यूक्लियस में चार्ज सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से है? तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना हुआ है, और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं, और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है इन क्वार्क्स पर डिपेंड करता है. एंड गोइंग टू सम मोर डेप्थ, प्रोटॉन्स इज मेड ऑफ 2 अप क्वार्क्स and a single down quark, whereas neutron is made up of 1 up quark and 2 down quarks, and an up quark has a charge of 2/3 and a down quark has a charge of 1/3. तो total charge on proton and neutron इन up quark और down quarks से मिलकर बना होता है. जैसे कि प्रोटॉन में 2 up quarks है, तो प्रोटॉन पे चार्ज 2e/3 plus 2e/3 minus 1e/3 that is of a down quark is equals to 1 electron, और न्यूट्रॉन पे चार्ज 2 डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क्स से मिलकर बना होता है, that is 2e/3 minus e/3 minus e/3 equals to 0. इसका मतलब ये है कि चार्ज तो न्यूट्रॉन्स में भी है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाने की वजह से ये न्यूट्रल है. इसका मतलब न्यूक्लियस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों की वजह से है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे भी चार्ज होता है लेकिन वो आपस में कैंसिल आउट होकर न्यूट्रल हो जाता है. तो एक क्वेश्चन का तो हमें आंसर मिल गया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन की वजह से नहीं बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की वजह से होती है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, डू ऑल न्यूक्लियाई गेट्स फ्लिप्ड एज वी सपोज देम टू? तो नहीं, सिर्फ एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई ही फ्लिपिंग और इस प्रोसेस को शो करती है. अब एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होता है? तो एनएमआर स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था. न्यूक्लियाई भी स्पिन करता है जिसकी वजह से उसके पास स्पिन क्वांटम नंबर आई होता है. प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब एक न्यूक्लियाई के अंदर दोनों भी इवन हो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, तब हमारा स्पिन क्वांटम नंबर आई का 0 होता है. आई की वैल्यू 0 होती है और हमारा न्यूक्लियाई इनएक्टिव होता है. मीन्स जब दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन नंबर क्वांटिटी में होते हैं न्यूक्लियाई में, तब वो न्यूक्लियाई एनएमआर प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई होता है. जब एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों या तो इवन या तो ऑड, मीन्स इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इवन then in that case number of neutrons is odd, and when number of neutrons are even, number of protons are odd, तब स्पिन क्वांटम नंबर हाफ इंटीग्रल स्पिन शो करता है, और इस कंडीशन में हमारा न्यूक्लियाई सबसे मैक्सिमम शार्पनेस की पीक्स देता है. एनएमआर के ग्राफ में इस कंडीशन में सबसे मैक्सिमम शार्पनेस की पीक मिलती है, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों भी ऑड है तब हम स्पिन क्वांटम नंबर इंटीजर्स के फॉर्म में होता है, और ये भी एक्टिव न्यूक्लियाई ही होता है. मीन्स ये भी पार्टिसिपेट करता है एनएमआर प्रोसेस में. फर्स्ट कंडीशन में दोनों भी इवन होने पर उनका मैग्नेटिक स्पिन एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो जाता है और मैग्नेटिज्म नहीं होता. हेंस वो एनएमआर की किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो ये पता चला कि हमें
कौन सा न्यूक्लियर NMR रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और नहीं, और इसी बेसिस पे वो किस तरीके क्या वो फ्लिप करेगा मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फ्रीक्वेंसी में रखने पर। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन्स की ही तरह कंटिन्यूसली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दोनों करता है, एंड एज न्यूक्लियस इज अ चार्ज्ड पार्टिकल इट बिहेव्स एज अ टाइनी मैग्नेट ड्यू टू रोटेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। न्यूक्लियस में मैग्नेटिज्म सिर्फ प्रोटॉन्स के ही कारण नहीं बल्कि न्यूट्रॉन्स पे भी चार्ज होते हैं, एज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्वार्क्स से बने होते हैं और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पर चार्जेस इन क्वार्क्स के होते हैं जो न्यूट्रॉन्स में न्यूट्रल हो जाते हैं। NMR एक्टिव न्यूक्लियस ही आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इन न्यूट्रॉन्स को हम जब एक DC मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और रेडिएशन या रेडियो फ्रीक्वेंसी उस पर डाली जाती है, तब एक स्टेज पे आकर न्यूक्लियर फ्लिप कर देता है। अब न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन के कांटेक्ट में आने पर क्या प्रोसेस करता है इसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।